Hello students, welcome back to our channel Gyanmanji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, in our last lecture we had started our fifth unit in our supplementary reader book, that is Footprints Without Feet. And here you can see the title of the chapter is also Footprints Without Feet. So without feet, footprints are there. So we had seen that one scientist was there. So what did he do? He was misusing his discover. Okay, so let's go further. So last we had completed here that to escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. So, whatever he could find the money, he just robbed, and before that, he just attacked the shopkeeper from behind. Then we have the question answers. So this answers are not whatever we have completed portion, but they are the first question, and then according to that question answers are there, like this all paragraphs. Okay, so let's start. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked two rooms at the local inn. So now he reached to there was one village name of Epping. So यहाँ पे जो crowded वाला था, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन वाला जो एरिया था, वहाँ से दूर भागने के लिए उसने कौन सी ट्रेन पकड़ी? वहाँ का जो एक विलेज था वहाँ की ट्रेन पकड़ी, और वहाँ का लोकल इन था, वहाँ पे उसने 2 रूम्स बुक किए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. The arrival of a stranger at an inn. तो एक जो होटल होती है उसे इन बोलते हैं, अ काइंड ऑफ होटल रेस्टोरेंट. तो वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आया था. कौन सी सीज़न में? इन विंटर. इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक अनयूजुअल इवेंट थी एक स्ट्रेंजर को वो इन में विंटर की सीजन में आना. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टर्म्स वैगिंग. मीन्स ही वॉज नॉट अ काइंड ऑफ नॉर्मल मैन. वो एकदम से अनकॉमन उसका अपीरियंस था. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has if affected my face," because he had applied the bandages, a kind of bandages. So after reaching to that inn, Mrs. Hall, who was the landlord's wife, वो बहुत इसे फ्रेंडली एफर्ट दे रही थी, क्योंकि उसका इन था तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो आते थे उसे वो वार्म वेलकम करती थी. बट ग्रिफिन, उसे किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, एंड ही जस्ट टोल्ड दैट मिसेस हॉल. क्या बोला? माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मैं शांति से यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब. मैं विश करता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे वर्क में. और वैसे भी मेरा ये जो फेस है वो एक एक्सीडेंट से अफेक्टेड हुआ है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, because he had that kind of temper. But what did he do? Satisfied that her guest, मतलब जो ग्रिफिन आया था उसने, वो एक तो साइंटिस्ट था और उसने एडवांस में थोड़ा बहुत
जो भी पैसे थे वो पे भी कर दिए थे। और अब वो क्या प्रिपेयर करने लगे थे, मतलब कि उसका जो इरिटेबल टेम्पर था और उसके जो हैबिट्स थे उससे यूज़ टू होने का वो, बिकॉज़ वो वहाँ पर ही रहने वाला था, तो अब उसे ये सारा सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग। पर जो उसने चुराए हुए पैसे उसके पास थे वो तो बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं थे। मतलब कि जो कुछ भी पे करना था वो उसने पे कर लिए वो पैसे से, पर आगे रहने के लिए वो क्या करेगा? वो तो इतने सारे तो उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बहुत दिनों तक वहाँ पे छुप सके। But the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at my moment, at any moment. So, what did he pretended? He pretended that maybe he will arrive a check in any time because he had not enough money, right? So, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब उसके पास और ज़्यादा कैश नहीं है, थोड़े बहुत थे वो दे दिए थे पर ज़्यादा नहीं थे, तो उसने बोला that I don't have more ready cash. And then he pretended that somebody will come, somebody will arrive, and uh, he will give Griffin a check in any moment. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were woken by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door and said, "Surrender." तो यहाँ पे थोड़े दिनों बाद एक अच्छा सा क्यूरियस एपिसोड बनता है। ऑफ कोर्स ये यही बनाता है ग्रिफिन है। क्या होता है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गीमैन एंड वाइफ वेर awkward by noises in the study. They were sitting, and from the study room a kind of awkward noises were coming. Then creeping downstairs, धीरे से वो नीचे गए और उसने सुना, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। तो ये क्लर्गीमैन के डेस्क में से कोई ऐसे पैसे निकालता है, ऐसी उन लोगों ने आवाज़ सुनी। Without making any noise and with a poker grasp firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो ऐसे तुरंत ही वो आ गए क्लर्गीमैन, और कुछ भी देखे बिना, और सिर्फ दे हर्ड द नॉइज, सो दे मीन्स दैट क्लर्गीमैन सेड सरेंडर कर दो। मतलब कि जो कोई वहाँ पे थिफ था, द थिफ वॉज अकॉर्डिंग टू दैम, a thief was there, and he was trying to snatch, and he was trying to rob everything, the money from that desk. So that's why he said surrender. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, बिकॉज उन लोगों ने आवाज़ सुनी, पर अमेजमेंट क्या था, उसने क्या रियलाइज़ किया डोर ओपन करके, दैट द रूम वॉज एम्प्टी, नो बडी वॉज देयर इन द रूम। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे भी देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी there was not a sign of anybody. Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. तो जो डेस्क में पैसे थे वो नहीं थे, मतलब उसने सारी जगह पे देख लिया, कर्टेन में देख लिया, फिर डेस्क के नीचे, उसके पीछे, सब जगह देख लिया, चिमनी में भी देख लिया, but there was not any sign that somebody was there. But they could see that that desk was open and their money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day.
because the because money was robbed, but they couldn't find a sign of anyone. That's why कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे जल्दी से कोई कैसे भाग सकता है, क्योंकि किसी को ऐसा मालूम ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कोई है साइंटिस्ट की जो जिसने कुछ ऐसा केमिकल डिस्कवर किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल ही कुड बी इनविजिबल. सो but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. तो पर अब वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था बिहेवियर कि जैसे मिसेस हॉल के फर्नीचर में नेक्स्ट मॉर्निंग था. अब कुछ और भी इवेंट होने वाली है, देखते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ were up very early, wake up very early, and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered in his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. So here, the landlord and his wife, they just woke up early in the morning and they were surprised. Why? Because they saw that scientist's room was widely open. Usually, whenever they see, scientist's room was shut and locked. And if anyone came there and tried to enter in his room, he became very furious. He became very furious and angry. So it was opportunity for them to check the room. So the opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door. उन लोगों ने आसपास में डोर के आसपास राउंड लगाए. सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. फिर उसने देखा कि कोई है, मतलब कि वो साइंटिस्ट है या फिर, तो उसे कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया. तो they decided to investigate. The bedclothes were cold, showering that the scientists must have been up for some time. तो जो बैड क्लोथ था वो गीला था, हो सकता है उसने अभी शावर लिया हो. और and stranger still, the scientist must have been up for some time. And stranger still, तो अभी वो स्ट्रेंजर भी था उन लोगों के लिए, मतलब साइंटिस्ट तो था पर ज़्यादा स्ट्रेंजर था. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम. तो वो जो बैंडेजेस अपने फॉरहेड में लगाता था वो कहाँ पे था? ही and bandages that he always wore were lying about the room. तो रूम में सारी वो बिखरी पड़ी थी, उस पे पड़ी थी, बेड पे पड़ी थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it changed straight at her, legs foremost. So here, suddenly, a kind of horrible, we can say, for them, horrible incidents were happening. कैसे हॉरिबल? हमें तो यहाँ पे पता है कि साइंटिस्ट जो है वो इनविजिबल बन सकता है, पर सडनली हमारे पास कोई हैट पड़ी है और वो हम पे ऐसे कोई लगाता है जिसे हम देख भी नहीं सकते, मतलब कि खुद से हैट हम पर गिरती है, फिर हमें कोई धक्का लगाता है, फिर वैसे ही चेयर अपने आप हिलती है, तो वो देखकर हमें क्या फील होता है? कोई हॉरर फिल्म देखते हैं ऐसा कुछ लगता है ना. तो यहाँ पर ये लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है.
with Mr. and Mrs. Hall, because all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. उसके कान के बहुत पास कोई ऐसा कुछ करता उस ऐसा उसने सुनाई दिया. A moment later, the hat on the bedpost lapped up and dashed itself. खुद से वो जो हैट थी वो मिसेस हॉल के फेस पर आ गिरी. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. मतलब कि वो बेडरूम में चेयर थी वो ऐसी अलाइव हो गई, खुद से हिलने लगी, मूवमेंट करने लगी. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. तो वो जो चेयर थी वो उसके पास, उसके लैग के नज़दीक भी आने लगी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर. बहुत घबरा गए थे, टेरर में थे. तो जैसे ही वो टर्न अवे करते दोनों, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम both out of the room and then appeared to slam and lock the room after that. तो क्या हुआ कि सडनली वो लोग जाने की कोशिश ही कर रहे थे और तुरंत ही वो जो चेयर थी उसने क्या किया, वो दोनों को ऐसा पुश करके ऐसा बाहर निकाल दिया और जल्दी से रूम अंदर से लॉक हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. तो यहाँ पे हिस्टेरिया जैसे होता है वैसे ही उसे हो गया कि ऐसा टेरर जो उसने देखा वो देखते ही वो ऐसे घबरा गई. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. तो यहाँ पे उसने क्या सोचा, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि नॉर्मल लोगों को सोचने के लिए और कुछ वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते. ऑफ कोर्स इट हैपन्स. तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या सोचा कि हो सकता है कि ये रूम में कोई स्पिरिट्स, मतलब कि कुछ आत्मा वगैरह आ गया हो. क्या सोचा? शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर, मतलब कि जो वो स्ट्रेंजर था जो हमारा साइंटिस्ट था, he had somehow caused this to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she mourned. To think it should rise up against me now. जब मतलब मिसेस हॉल की जो मदर थी वो अब नहीं है, पर वो पहले वो चेयर में बैठती थी, तो उसने ऐसा बोला that my poor mother used to sit in that chair, she mourned. To think it should rise up against me now. अब वो मेरे सामने आ रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो पहले क्या हुआ था कि उसके आसपास के लोगों भी ये सारा होता था, तो सारे लोग बातें बनाते थे कि ये भी ऐसा कुछ स्पिरिट्स वगैरह होता है, तो उसके हिसाब से ये हुआ होगा. पर जब सारे लोगों ने देखा ये क्लर्गीमैन के घर में से कैसे वो मनी रॉब हो गए, तो तब से सारे लोग ऐसे सोचने लगे दैट वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग. देन another impact was that the stranger scientist was now strongly suspected of having had a hand in it. क्यों? बिकॉज वो और भी स्ट्रॉन्गर बनने लगा जब सडनली उसके पास पैसे आ गए, रेडी कैश आ गए, चेक भी नहीं. उसके पास तो चेक आने वाला था, पर अब तो उसके पास रेडी कैश आ गए थे. तो ऐसा डाउट भी होता था कि जब वो क्लर्कीमैन था उसके डेस्क में से पैसे किसी ने निकाल दिए थे, बट दे कुडंट फाइंड द पर्सन. एंड इन अदर हैंड हियर ही हैड एडमिटेड अनदर रेडी कैश. So he was suspected, though he had admitted not long before that
ही हैड नो मनी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ ऐसा मनी जो था, पैसे थे, वो एडमिट नहीं किए थे, पर सडनली उसने किए, सो ऑफ कोर्स वो ऐसा सस्पेक्ट में हुआ था. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. तो यहाँ पे जो गांव से जो कांस्टेबल आने वाला था, जो ऐसे सीक्रेटली उसे सेंड किया था, पर उसकी वेट करने के बजाय वो सीधा कौन, मिसेस हॉल, वो कांस्टेबल के वेट करे बिना किसके पास गया, सीधे वो साइंटिस्ट के पास गई और उसने पूछा, वो जो उसका मिस्टीरियस अपीयर था वो उसके बारे में उसे पूछना था. हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, तो उसके बारे में भी उसे पूछना था. सो हियर शी इज टेलिंग, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. तुम ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, मुझे वो जानना है. शी डिमांडेड. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, बिकॉज before that event, that Mr. and Mrs. Hall, they were pushed to that room and that room was locked from inside, right? So it was very a kind of they couldn't imagine that anybody can come out from that locked room, and how could he enter that room, right? तो वो ये भी पूछना चाहते थे कि तुम वो लॉक रूम था उसमें से बाहर कैसे निकले और उसमें अंदर भी कैसे गए थे. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तो यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी बात में एंग्री हो जाता था. शॉर्ट टेम्पर, काइंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर, उसका नेचर बहुत शॉर्ट टेम्पर था. सो ही बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड ही सेड, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ. ही शाउटेड, चिल्ला के उसने बोला, और फिर बोला कि चलो दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तो यहाँ पे उसका अपीयर्स कैसा हो गया था बार में. तो जब ये मिसेस हॉल ने बताया और वो फ्यूरियस हो गया एकदम से, और फिर उसने क्या किया, सडनली उसने जो अपने फॉरहेड में बैंडेजेस लगाई थी वो सारी निकाल के फेंक दी. फिर स्पेक्स जो थे, जो बाल ऐसे थे, और जो फॉल्स नोज़ भी उसने लगाया था वो भी निकाल के फेंक दिया. और ये सब करने के लिए उसे सिर्फ 1 ही मिनट लगी. और फिर जो लोग थे बार में, तो वो किसे देख रहे थे, दे वर स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैसा हेडलेस मैन है. तो ये सब निकालते हैं, जैसे जैसे वो सब कुछ अपने कपड़े निकालता है वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा है. तो सारे लोग कैसे हॉरिफाइड हो गए कि किसी ने कभी भी किसी इनविजिबल मैन को नहीं देखा था. Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his hat. तो फिर क्या हुआ, मिस्टर जैफर्स यहाँ पे आता है. हु इज मिस्टर जैफर? He is a constable, and now he arrived, and he was now quite surprised to see a headless man, and he thought that I have to arrest a man without a hat.
but he had not um, that warrant, magistrate's warrant, and without that warrant he couldn't arrest any person. If he will get the warrant, if he will get magistrate's warrant order, then only he could arrest any person, whether he had or not. So there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. So here, there followed a remarkable scene. अब कैसा सीन बनता है देखते हैं. As the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. जो पुलिसमैन है वो ये स्ट्रेंजर को, यानी कि ये साइंटिस्ट को पकड़ना चाहते थे, पर जो धीरे धीरे पूरा इनविजिबल होता जा रहा है. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, तो एक से एक के बाद एक गारमेंट वो अपना फेंकता जा रहा है और धीरे धीरे वो पूरा इनविजिबल ही बनता जा रहा है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर and the constable found himself struggling with someone he could not see. और फाइनली क्या हुआ कि जो एक शर्ट था वो ऐसे एयर में रखा गया और वो लोग ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कि जो वो कांस्टेबल था वो किसी को पकड़ने की ट्राई कर रहा था. ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन, कि जिसे वो देख भी नहीं सकता, उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, और लोगों ने भी उसे हेल्प करने की ट्राई की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लॉज दैट सिम टू कम फ्रॉम नोवेयर. पर वो लोगों को एक ब्लॉ, मतलब कि एक हाथ से कोई मारता हुआ, और वो लोग देख भी नहीं सकते. वो मतलब कि कोई इनविजिबल किसी को मारता है तो कैसा होता है, वो लोग वैसा फेस कर रहे थे. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. फिर जेफर ने क्या किया, ही वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट. उसे पकड़ने का लास्ट अटेम्प्ट उसने किया कि जो दिखाई ही नहीं दे रहा था. नाउ ही वॉज टोटली इनविजिबल. So it was not possible to find him. It was not possible to just hold him. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. पर वो लोग क्या बोल रहे थे कि होल्ड हिम, पकड़ो उसे पकड़ो, पर बोलना इतना ही आसान था और पकड़ना इतना ही बहुत ही मुश्किल था. इट वॉज क्वाइट impossible to hold that invisible scientist. Griffin had shaken himself free. अब उसके पास पैसे, जैसे वो पहले उसे पकड़ रहा था तो कोई था ऐसा उसे फील हो रहा था, पर अब तो वो टोटली shaken himself free and no one knew where to lay hands on, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था, तो कैसे कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में पकड़े उसे कुछ मालूम ही नहीं था. तो एट द एंड साइंटिस्ट फिर से पकड़ा नहीं गया. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी भी ख़त्म होती है. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि कैसे उसने साइंटिस्ट ने अपना डिस्कवरमेंट मिसयूज़ किया, राइट. तो ये पूरी स्टोरी है बाय H.G. वेल्स. सो स्टूडेंट्स, इसके जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है दैट यू हैव टू राइट डाउन. पिक्चर्स भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसा है. ओके, सो दिस 3 क्वेश्चंस, देन this talk about it and think about it, that you have to write down. That is your homework. Okay, so if you find any difficulty regarding this, you are free to ask me
And here we are going to end up our today's lecture as well as today's this chapter 5th. Okay, bye everyone and have a nice day.